आनंद आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। शिल्पा जी शुरू कीजिए। 100 लोग हो गए ऑलरेडी। हाँ जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। Very respected principal sir, our speaker for the day, CA Vijay Kumar Gupta ji, Dr. Manoj Shukla, convener of the event, faculty members from different departments, and my dear students. I, Dr. Shilpa Goyal, on behalf of Career Counseling Cell, welcome you all to this 3-day lecture series on career opportunities in current market scenarios. Now, this is a 3-day lecture series wherein we will be trying to focus on the various career options available in the market, in the field of commerce, in the field of marketing, or you want to be an entrepreneur. So I sincerely hope we'll be imparting various useful tips with our students. In the beginning, I'd like to invite Dr. Manoj Shukla, the convener of the event, to throw some light on the theme of this lecture series. Thank Sir, you, Shilpa. Dr. Manoj Shukla. Thank you. Respected principal sir, patron of this 3-day career counseling webinars, and he's also force behind this all activities in our campus. CA Vijay Gupta ji, our resource person of the day, and all other faculty members and all students who are there. I welcome you all. For the last 10 years, under the Career and Counseling Cell, we have been organizing number of events in a particular year, so student can know various career options. Under this banner, we also organize training program. Dr. Shilpa is organizing various training programs, various placement programs, so that student can know that what kind of skills are required in the market and whether these skills can be provided while doing this degree course. When CA Sri Vijay Gupta ji is with us, so we hope that Sri Gupta ji will be telling even to the non-commerce student whether there exists any option, whether a science student or a art students who do not have any kind of accounting background, can they search any scope in the commerce line? Because the BCom students are well aware, even BCom students, they want to become CA, but as we know that becoming a CA is a bit tough job, result is very, very low. So now we want to know from you, sir, that whether science student and commerce art students, can there are some options after getting training in the job market. So without not taking much of time, I would request our principal, sir, to throw light on this webinar series of 3 days and also motivate our students. Principal, sir. Am I audible, Manoj? Yes, हाँ, बस अभी थोड़ा हो रहा है लेकिन audible है. आप start हो तो it will be all right. हाँ, audible, sir. Sir, you are not audible. आवाज आ रही है मेरी? अब आई है. अब आनी शुरू हुई है sir. Yes, now you are visible also. Yes, sir. ठीक है। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ की करियर काउंसलिंग सेल द्वारा आयोजित ये वेबिनार, जिसके संयोजक डॉक्टर मनोज शुक्ला हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शिल्पा गोयल हैं, और इसका जो विषय है करंट अपॉर्चुनिटीज इन करियर अपॉर्चुनिटीज इन करंट मार्केट सिनेरियो। 3 दिन की श्रृंखला इन्होंने रखी है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। और इसकी शुरुआत आज एक ऐसे व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के द्वारा की जा रही है
जो मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं सामाजिक दृष्टि से, और आज विधिवत अग्रवाल महाविद्यालय ने उनको आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है कि मुख्य वक्ता के रूप में, क्योंकि सिनेरियो तो बहुत खराब लग रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स का सिनेरियो हो, चाहे वो इकोनॉमी का सिनेरियो हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सिनेरियो हो। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि आशा पर ही जीवन आधारित है, होप सस्टेन्स लाइफ, तो छोड़नी नहीं चाहिए। आज मुझे लगता है कि अंधेरे में प्रकाश का दिया जलाने के लिए हमारे इस मंच पर वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सीए विजय गुप्ता जी। उनका परिचय तो मैडम शिल्पा गोयल देंगी आपको कि वो किन किन संस्थाओं के मुखिया हैं, भूतपूर्व में मुखिया रहे हैं, वर्तमान में मुखिया हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि ही इज ए वर्सेटाइल जीनियस पर्सन, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल फंक्शंस में उनको सुना है। ही इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ही इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, not only for the students, even for the faculty members. So I am sure that whosoever is joining this webinar on career opportunities in current market and scenario, maybe our faculty members from our own college and from other colleges, and the students, they will really be benefited by his words of wisdom. तो मैं ज्यादा देर आप लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप अच्छी अच्छी बातें सुनो और अंधेरे में जो दिया आज वो जलाएंगे, उससे प्रकाश लेकर के आप भी फिर कुछ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और सिनेरियो चाहे कैसा भी हो उसको अच्छा बना लें अपने लिए। एक बार दोबारा से मैं सभी विद्यार्थियों का जो इस तरंग गोष्ठी में, इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनको आशीर्वाद देता हूं और आयोजकों का बधाई देता हूं, और सीए विजय कुमार गुप्ता जी का हृदय से पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि वो अपने व्यस्तम समय में से, मुझे मालूम है ही इज ए वेरी बिजी पर्सन, लेकिन पता नहीं शुक्ला जी का क्या अट्रैक्शन है कि उनको मना पाए और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाए, एंड शिल्पा गोयल का, तो ही इज देयर विद अस। मैं भी रहूंगा पूरे उसमें, क्योंकि मैं भी कुछ इंस्पिरेशन लूंगा इस से। तो एक बार पुनः उनका हृदय से स्वागत और धन्यवाद भी कि वो अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। एंड आप सबका भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर स्वागत भाषण के लिए बुलाया। ओवर टू शिल्पा गोयल प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. And now let me have the honor of introducing our speaker, CA Vijay Kumar Gupta ji, who is a CA by profession, but he is also an excellent speaker, motivator, and career guide to many. He is practicing CA for past 32 years and has more than 12 partners. He is the managing director of KVG Insolvency Advisors Private Limited and is working as insolvency professional. In the field of education, his work is immense. He runs 2 schools in Kosi and Palwal for the weaker sections of the society under Shanti Shiksha Samiti. He is the convener of so many societies working for the welfare of various stratas of the society and the chairman and member of various professional bodies and editorial boards. Today, he will deliberate on career options in the field of commerce for both commerce and non-commerce students. Now, while I was discussing the things with Vijay sir, he told me, Shilpa, there are so many career options which people think only commerce students can do. But then he told me these options can very well be taken by non-commerce students also. And this what attracted us the most. So today he'll be deliberating on the topic, various career options for the students of any stream in the field of commerce. Welcome, sir. Welcome to the platform. And over to you, sir. Thank you. Good morning, everybody. Our honorable patron and the principal and very elder, very dear friend of mine, my elder brother, Sri K.K. Gupta ji. When I said
when I say my brother or he says that I am his brother, it is really honor to me, because I always feel privileged to be associated with KK Gupta ji. And the convener of today's program, Manoj Shukla ji, and the organizing team headed by Silpa Goyal ji, all the faculty members, all the members of the organizing team, all the members from the management committee of Agrawal Mahavidyalaya, all my dear students, ladies and gentlemen. First of all, let me express my sincere thanks to firstly to Silpa Goyal ji that she talked to me that Vijay ji, please address our students for 45 minutes to 1 hour time. And really it is a wonderful platform I am seeing, because this 3 days learning series, this training series organized by Agrawal Mahavidyalaya, I really appreciate either KK Gupta ji, Manoj ji or Silpa ji, because this is the right time to give the training, to give the guidance to the students. As told by Silpa ji, this program is being organized for the students of graduation from all these streams, and not only from the commerce, from the science as well as from the arts. So I'm really privileged to have the opportunity to be amongst you, to be part of this wonderful program. As far as my address in the programs organized by Agrawal Mahavidyalaya, this is the second time. First time KK Gupta ji invited me somewhere in 2010, I think, 2010 or 11, when I was the Central Council member. So that was the first time, that was a physical meeting. So that was the first time I got the privilege. Thank you, KK Gupta ji. And this is the second time I am going to address the students. Friends, as I said, this program is really wonderful, and particularly when this environment is not so good because of this COVID scene for the last 1.5 years. As हमारे KK गुप्ता जी ने अभी एक बात कही कि अंधेरे में दिया जलाने की बात, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी से हम लोग गुजर के आए हैं। हम का मतलब केवल इंडिया के अंदर नहीं है, हम का मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर है। पूरी की पूरी हमारी जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, वो सारे लोग सफरर हैं इस समय पिछले 1.5 साल के अंदर। मैं चाहूंगा शिल्पा जी, विद योर परमिशन, with the permission of KK Gupta ji, I would feel appropriate to run one video of 2.5 minutes. This is very appropriate in the present scenario. जहां तक KK Gupta जी ने जैसे कहा कि अंधेरे में दिया जलाने को, उसी तरह का एक वीडियो है। अगर आपने मुझे इस शेयर स्क्रीन करने की परमिशन दे रखी हो। ये सर आपके पास है। I would take only 1 minute time. थोड़ा टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ थोड़ा सा कमजोर है। गुजर जाएगा,
गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। राइटली सेड, मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। दोस्तों, जहां तक आज के प्रोग्राम का सवाल है, जो मुझे टॉपिक दिया गया था, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू शिल्पा गोयल जी टू डिजाइन दिस प्रोग्राम, I myself suggested that once we are going to having these 3 days program, so हमारा जो फर्स्ट डे होना चाहिए उसके अंदर हमें कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स, जैसे कि पहले भी कहा गया, कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो दोनों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। And rightly said by Shilpa ji and the other speakers that many of a sizable number of our students, they are confused, they are not aware about the what options are available in the as a career for the in the commerce stream, in the commerce line, for those students who are not from the commerce, either they are from the science background or from the art background. So बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी कॉमर्स ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं। मैं इससे पहले, मुझे 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है, इससे पहले कि मैं कॉमर्स नॉन कॉमर्स की ऑप्शंस के बारे में जाऊं, मैं 5 से 7 मिनट जो है कुछ इन जनरल कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, दे आर they are under the graduation course, तो ये एक बहुत राइट टाइम है आपके लिए कि नॉर्मली हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बात सोचते हैं, बट इन टुडेज वर्ल्ड हमारा जो यंग जनरेशन है ना, दे आर वेरी अवेयर। वो 12th जहां तक, जैसे ही 12th करते हैं उसके बाद ही उनका कैरियर ऑप्शंस के बारे में एक माइंड लगना शुरू हो जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग। जहां तक कैरियर ऑप्शंस के बारे में, मैं अपने कंट्री के बारे में जितना कि मैं घूमता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान को मैंने कवर किया हुआ है एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट, बट आई हैव रियलाइज्ड, व्हाट आई हैव फाउंड, कि बहुत सारे साइजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो कैरियर ऑप्शंस होती है ना, वो खुद की नहीं होती। मैं पहले उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आई ऑलवेज से कि कैरियर चॉइसेस आर नॉट being told by the others. These are being told by the others, not chosen by the student. These career choices are being obeyed by the students, not
expressed by the students. Students means जो भी हम जिसकी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं. Career choices are being copied by the candidates. These are not being originally explored by the candidate. These career opinions options are being forced. Many times these are being forced and not being provided to them. कि आप अपनी ये ऑप्शंस है, आप इसमें से चूज करिए कौन कौन सी आप चॉइस रखना चाहते हो. तो these are being majority of many of the times these are being forced, not being provided. And forced may be because of the family background, because of the financial background, because of the economic conditions, because of the social background, or because of these geographical conditions as well. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तो करना चाहता है, कैंडिडेट तो करना चाहता है कुछ, लेकिन उस जोग्राफिकल एरिया में उसके लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. और खासकर ये दिक्कत हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आती है कि उनको उस जगह से बाहर जाना होता है. तो हमारी जो सोसाइटी का सेटअप है, उस सोसाइटी के हिसाब से मेनी टाइम्स हमारी फैमिलीज के लिए एक कंस्ट्रेंट रहती है, हम उनको एक्सप्लोर नहीं करवा पाते अपने बच्चों को. मैं बार बार ये कहता हूं अक्सर कि हमारे कंट्री के अंदर ना थियोरेटिकल थ्योरीज ज्यादा प्रिवेल करते हैं, इन्फ्लुएंसिव होती हैं कैरियर ऑप्शंस डिसाइड करने के लिए, रेदर देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अबाउट द एबिलिटीज कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स. हमको सबसे पहले कोई भी अपना कैरियर चूज करना है, कोई भी चीज हमने चूज करनी है एज ए कैरियर ऑप्शन, तो सबसे पहले तो अपने को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. मैं हूं क्या, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है. हम लोग इन सारी चीजों को जिस स्टेज पे आप लोग हो उस स्टेज पे हम लोग उन कैरियर ऑप्शन, उन चीजों के बारे में, अपनी ग्राउंड रियलिटीज जो अपनी खुद की है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने अपने जो कारण बताए. तो पहली चीज तो ये है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी. once you are getting the chance to explore the possibilities, then आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोशल वैल्यूज हैं, सोशल सराउंडिंग्स हैं, उसको देखते हुए आप अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें. उसके बाद में आप प्लान ड्रॉ करें. वो प्लानिंग बहुत जरूरी है कि मैं इस लाइन में जाना चाह रहा हूं और इसको क्वालिफाई करने के बाद में इस डिग्री को, इस स्किल सेट को मैं अचीव करने के बाद में मेरा फ्यूचर क्या है, एंड देन उसको आपने एक्ट अपॉन कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो आप सबको पता है. तो मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस में अगर आपको बोलूं, मैं ये कहूंगा कि आप खुद के कैरियर बनिए अपने कैरियर के लिए. दोनों शब्द एक ही हैं, स्पेलिंग का फर्क है. कैरियर मींस ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला. तो आप आगे बढ़ाने वाली बनिए अपने कैरियर के लिए. डोंट बिकम द बैरियर इन योर कैरियर. Once I say don't become the barrier in your career, meaning thereby that you choose what you want, you choose what you have as far as the skill set is concerned. अगर आप वो चॉइस जो अपने हिसाब से करेंगे ना, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है. जब हम कहते हैं प्लान द फ्यूचर, तो आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव. आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, फैमिली की वैल्यूज को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. अब मैं केवल हमारे जो सोशल सिस्टम है, हमारे जो फैमिली सिस्टम्स है, उसके अंदर 100% हम फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते कि केवल और केवल मैंने जो करना है वो करना है. बट यू हैव टू एक्सप्लेन टू द फैमिली कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ. इसके साथ में आपने ये भी देखना है 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. आज के विजय कुमार गुप्ता के बारे में जो एक छोटा सा ब्रीफ उन्होंने बताया, 33 years back, not 33 years back, in 1981 December, I joined the Chartered Accountancy course. मैं जिस विलेज से, जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, आंवला नाम का एक जगह है इन यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली, मुझे नहीं पता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है. When I was in the 11th standard, my father told me, he was aware the chartered accountant क्या होता है. My father told me that Vijay, you are going to become the chartered accountant. आपने बीकॉम करने के बाद में सीए करना है. मैंने पापा ये सीए होता क्या है. मैं आपसे बड़ी लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, क्योंकि जो लेमन लैंग्वेज में बात करी जाती है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है और जो आपके कानों से जाके अंदर तक उतरे तब जाके फायदा है. मैं कोई यहाँ पे थ्योरेटिकल बात करने के लिए नहीं चाहूंगा कि मैं थ्योरेटिकल बात करूं. मैंने पापा ये सीए होता क्या है. देन ही एक्सप्लेन
कि व्हाट इज दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज। साथ में एक सवाल जरूर आया कि क्या मैं कर पाऊंगा ये बात को मैं बाद में भी कवर करूंगा, क्या मैं कर पाऊंगा ये मैं बाद में कवर करूंगा इसके बारे में। उन्होंने कहा था, मैं इसी कहते हैं मुश्किल बहुत है, मुश्किल तो है लेकिन मुमकिन है। मुमकिन क्यों है? क्योंकि इसको तो लोग हमारे ही लोग करते हैं ना, कोई दूसरे प्लेनेट से तो लोग नहीं आते इस सीईओ को करने के लिए। तो प्लान करिए 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप क्या करना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो। तो आपका जो है गोल सेटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राइट टाइम है आपका, ये राइट टाइम पे आप अपने कैरियर को, ठीक है 12 तक मैक्सिमम लोग जो है 12 तक अपने कैरियर को चूज कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो अपने आप को आर्ट साइंस या कॉमर्स लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ओपन है अभी भी कॉमर्स के साथ साथ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि मिड कैरियर क्राइसिस बहुत आते हैं। और मिड कैरियर क्राइसिस की बात मैं केवल क्वालिफिकेशन लेने से पहले की भी बात कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन लेने के बाद की बात भी कर रहा हूँ। आप किन्हीं ना किसी कारण से, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से आप ऐसा कैरियर पाथ चूज कर लेते हो जो आपके टेस्ट का नहीं है, और प्रैक्टिकली फिर आपको एकेडमिकली दिक्कत आती है, डिफिकल्टीज आती हैं आपको, और ना चाहते हुए भी आप उस क्वालिफिकेशन को अचीव करते हो। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्वालिफिकेशन तो जैसे तैसे, क्योंकि यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर फोकस्ड, यू आर डेडिकेटेड, यू आर डिटरमाइंड, एंड यू आर आल्सो ए सैक्रिफाइसिंग नेचर लाइक योर फैमिली, कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को देखते हुए और आप उसको आगे बढ़ा देते। लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो कर ली, बट दे आर नॉट गुड इन अकाउंट। उनको टेस्ट में नहीं है, उनको कलर्स अच्छे लगते हैं, उनको डिजाइन अच्छे लगते हैं, उनका विजन था कि शायद मैं फैशन डिजाइनर बनूं, उनका विजन था कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, उनका विजन कुछ और भी हो सकता था। तो मिड कैरियर चॉइसेस, जो मिड कैरियर क्राइसिस जो है ना, वो बहुत परेशान करती हैं। तो व्हाट एवर यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, आज का टाइम बेस्ट टाइम है। फैमिली के साथ बैठिए, लोगों से राय लीजिए। मैंने एक फोर्स्ड ऑप्शन की, फोर्स्ड चॉइस की बात की। वो फोर्स्ड चॉइस होती क्या? आप एक बार अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए, फोर्स्ड चॉइस होती क्या? फोर्स्ड चॉइस क्या है? आपकी मम्मी जी, आपकी मामी जी वो कंपैरिजन कर रही है, वो देखो ना, उनके बेटे ने आर्किटेक्ट का कोर्स कर लिया, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। उनके बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। उनका बेटा जो है बीएड करने के बाद में देखो ना कितनी आराम की जिंदगी जी रहा है। जैसे हमारे बाकी सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि लेक्चरर्स की लाइफ बड़ी इजी है। लेक्चरर्स की लाइफ इजी तो है, लेकिन उसके पीछे कितनी उनकी मेहनत होती है ये आपको नहीं पता। तो आपको ये देखना है कि जो दूसरों की चॉइसेस हमारे को बताई जा रही हैं वो अपने को नहीं लेनी, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी फैमिली के साथ में बैठ के वो डिसाइड करने वाला काम होता है। गुड प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिस भी कैरियर को आपने चूज किया उसमें आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, आपकी कैरियर की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और जो ग्रोथ रेट है ना वो रिलेटिवली बेटर होता है इन कंपैरिजन टू द नॉन चॉइस एरिया जो है, जो आपको दे दिया जाए उसमें ग्रोथ अच्छी होती है। और जिसको कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना केवल बिजनेस के अंदर ही नहीं होती, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो जॉब हो, सबके अंदर होती है। अब मैं बात करूंगा कि जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यस दिस इज माय चॉइस, बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली पूरी खुली ऑप्शंस देती है, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल पाते, जैसा कि मैंने पहले बोला। अब हम बात करते हैं इन चॉइसेस के बाद में, इन ऑप्शंस के बाद में, कि एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मैं आज जो कवर करने जा रहा हूं अगले 30 से 35 मिनट के अंदर, मैं वो ऑप्शंस कवर करने जा रहा हूं जो एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, और साथ में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी उनको कर सकता है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि नॉन कॉमर्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी बनती है। बस फर्क ये है कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टेन परसेंटेज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और नॉन कॉमर्स के लिए उसके अंदर सर्टेन परसेंटेज जो है इंक्रीज्ड है थोड़ा सा। उसमें अगर 55% की बात करते हो तो उसमें 60 की बात करते हैं, उसमें 50 की बात करते हैं उसमें 55 की बात करते हैं। एक सर्टेन परसेंटेज का कहीं ना कहीं फर्क हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली सभी के अंदर ऐसा।
अगर हम बात करें कि अब कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, कॉमर्स लाइन के अंदर हमारे लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे कॉमर्स, मैं उसको बार बार कॉमर्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कॉमर्स लाइन के अंदर अपने को क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन यू कैन डू दिस MBA. MBA, as everybody is aware, the Masters of Business Administration you can do. If you are good in communication, you are good in management, then this is the best choice for you to go for the MBA course. If you are good in accountancy, you are good in numbers, you are good in mathematics, so then the chartered accountancy is the best choice. If you say नहीं सर, मेरा कहीं ना कहीं कुछ जो है मुझे ज्यादा अच्छा लगता है लॉ के बारे में पढ़ना, सेक्रेटरी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना, तो आप कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकते हो. आप कहते हो कि मैं कॉस्टिंग वगैरह टाइप की चीजों में ज्यादा अच्छा हूं, मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करूं, एनालिसिस करके उसकी कॉस्टिंग निकालूं, कॉस्टिंग कंपोनेंट्स निकालूं, तो आप ICWA कर सकते हो. इसके अलावा ये जैसे अकाउंटेंसी बेस्ड 2-3 चीजें हो गई. आप अगर आप कहो कि आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, आप सपने अच्छे दिखा सकते हो, आप सपने अच्छी तरह से बेच सकते हो, यू आर गुड सेलिंग द ड्रीम्स टू द अदर्स, राइट. तो जिसको हम कहते हैं ना प्रेजेंटेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो वो मार्केटिंग स्किल्स कराते हैं, तो आप मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो. कॉमर्स के अलावा आपके अंदर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, you are good as far as the relationship business relationship is concerned, तो आप ट्रैवलिंग एंड हॉस्पिटलिटी में जा सकते हो. यू आर गुड, मैंने अभी जैसे कंपनी सेक्रेटरी की बात की, आपको ला पॉइंट पे आपको बड़ा अच्छा लगता है बात करने में, जिरह करने में, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रुप के अंदर बैठे हैं और आपको लगता है कि नहीं जी ला पॉइंट पे डिस्कस करना, यू कैन गो फॉर द एज ए लॉयर एज वेल आफ्टर डूइंग दिस LLB. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आप कर सकते हो. कॉमर्स के अंदर मैंने पहले कहा कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी पहले मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो. उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा 2-3 लाइन के बारे में, और खासकर मेरा क्योंकि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन टू गाइड यू अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्स्ट, और मेजर पार्ट उसी के ऊपर रहेगा. ICWA एक लाइन अगर आप देखें इस कॉमर्स के अंदर, दैट इज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसको कि हम CFA कहते हैं. काफी लोग अच्छी तादाद में इसके अंदर भी CFA भी काफी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं. वो कहते हैं मेरे को अकाउंटेंसी नहीं करनी, मेरे को टैक्सेशन नहीं करना, मेरे को कॉर्पोरेट लॉ नहीं करना, तो वो CFA ज्वाइन करते हैं. इसके अलावा सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो यूके की डिग्री है, आप इंडिया में बैठ के कर सकते हो, CMA जिसको हम कहते हैं नॉर्मली. इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन मिलती है तो दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ये सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या है? ये CPA है. CPA USA का भी है, CPA ऑस्ट्रेलिया का भी है, कई सारे कंट्रीज का हम CPA कर सकते हैं. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो FRM का कोर्स भी अवेलेबल है. कुछ ना कुछ छोटे छोटे कोर्सेज और भी अवेलेबल है, जैसे कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की बात करें, ये सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें. अब जैसे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात की, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का शौक है, उनको लगता है कि मैं इसके अंदर अच्छा कर सकता हूँ, उनका टेस्ट में, तो बट नेचुरल है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए. तो मैंने ये आपको 10 से 11 जो आपको कोर्सेज के बारे में बताया, दीज आर दी एग्जांपल्स. इसके अलावा छोटे छोटे कोर्सेज, बड़े सारे छोटे छोटे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि कॉमर्स लाइन में अवेलेबल हैं, जो कि कॉमर्स नॉन कॉमर्स दोनों कर सकते हैं. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं, मैंने कहा ना कि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज्यादा बात करता हूं. लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होके बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक बार ये तो लगता है कि बाकी कोर्सेज के मुकाबले ये टफ है. दिस डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी is tougher than the other courses. Undoubtedly, you are correct. You are 100% correct. But if you
compare a chartered accountant with the other profession, other qualification, then you will feel yes, this is the best course for me. जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में, जितनी मेहनत, जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसमें भी मेहनत के हिसाब से ही है कि जितनी मेहनत आज आप कर लोगे, शुरू के 4 साल, 3 साल, 5 साल में कर लोगे, उतना ही आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलने वाला है, वो इन द डेज टू कम मिलने वाला है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीए की कंपैरिजन दूसरे कोर्सेज से करूं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो कवरेज है, जो कोर्स करिकुलम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो इतना वास्ट है कि उसके अंदर आप सीए करने के बाद में जितने भी मैंने आपको कोर्सेज गिनाए हैं, if you talk about the company secretary, if you talk about the ICWA, if you talk about the CFA, if you talk about the CMA, CPA, FRM, certified financial planner, investment banking, आप ये 10 कोर्सेज जो आपके मेजर कोर्सेज हैं, अगर आप इन कोर्सेज को पूरा कंबाइंड कर दें तो लगभग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करिकुलम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो इतनी सारी आपको ऑप्शंस सीए करने के बाद में दे देता है। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि फिर दूसरे कोर्सेज क्यों? देखिए, दूसरे कोर्सेज के लिए आप अगर आप बात करेंगे तो दूसरे कोर्सेज मैं उसके मुकाबले ये कहूंगा, एक सेगमेंट के लिए अगर आपको कोर्स करना है, तो बैंकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए करना है, तो वो आपने कर लिया, लेकिन आप दूसरी फील्ड के लिए मास्टर नहीं हो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में ही आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि हमें ज्वाइन कैसे करना चाहिए। मैं टेक्निकल चीजें कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि टेक्निकल चीजें कवर करने के अंदर आपको, अगर आप चाहेंगे तो वेबसाइट पे जाइए, आपको सारा मिल जाता है। छोटा छोटा कवर कर सकते हैं। लाइक आप सीए की ज्वाइनिंग के लिए अगर आप 12th पास हैं तो सीपीटी कर सकते हैं। सीपीटी करने के बाद में देन यू गो फॉर द मेन कोर्स, राइट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डायरेक्टली आप, जैसे आप लोग ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऑडियंस में ऐसे बच्चे भी हों जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो 50% मार्क्स अगर उनके हैं तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको 55% पे मिलता है। जहां तक कंपनी सेक्रेटरी का सवाल है, उसके अंदर भी इसी तरह, मतलब ये जो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू लगभग तीनों के अंदर एक से एक ज्वाइनिंग, एक सा ही लगभग ज्वाइनिंग पैटर्न है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में, कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में, आईसीडब्ल्यू करने के बाद में आपको मैं कैरियर ऑप्शंस बताता हूं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करें तो उसका एक लिमिटेड सा दायरा है, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग। आज की डेट में हम वैल्यूएशन की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, तो वो एक लिमिटेड दायरा रहता है। जहां तक कंपनी सेक्रेटरी का सवाल है, फ्रेंड्स, कंपनी सेक्रेटरी मेनली जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से कनेक्टेड है, कॉर्पोरेट लॉ से कनेक्टेड है। कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में मेनली जो हमारी गर्ल्स है ना, वो ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी करते हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी विस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आप जॉब भी कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी के अंदर बहुत हमारे एज पर आवर लॉ, एज पर द कंपनीज एक्ट एंड द अदर रिलेटेड लॉज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दिस जहां पे कि हमारे को सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। एक कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से हमारे को सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। उस काम के लिए हमारे जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो लोग उसका सर्टिफिकेट देते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं, राइट। तो कंपनी सेक्रेटरी में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम जॉब भी कर सकते हैं। अब जॉब के बारे में पूछेंगे, हर अच्छी कंपनी, हर एक रिलेटिवली एक साइज के बाद में एक कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी वहां पे रखना जरूरी होता है इन ए सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कंपनीज। साथ में हर कंपनी का जो कॉर्पोरेट लॉ डिपार्टमेंट है वो टू बी मैनेज्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी रहता है एज पर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर मिडिल लेवल की है और अपर मिडिल लेवल की है, उसमें हो सकता है एक कंपनी सेक्रेटरी हो। जैसे जैसे कंपनी की
कंपनी का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोप भी, नंबर ऑफ बढ़ता जाता है। तो अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी को अगर ब्रीफली जो मैंने आपको समराइज किया वो इसका यही है कि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, हाँ अगर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं अक्सर कि कंपनी सेक्रेटरी इजी है या सीए इजी है। देखिए टफ तो दोनों है, लेकिन अगर आप एज ए होल बात करेंगे तो यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज टफर देन द कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे बच्चे केवल इसलिए ज्वाइन करते हैं कंपनी सेक्रेटरी कि दिस इज इजियर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मेरा आपको केवल और केवल यही बताना है कि आप आज का इजीनेस नहीं देखिए, आप ये देखिए कि आपका टेस्ट क्या है। अगर आपका टेस्ट अकाउंटेंसी का है, टैक्सेशन का है, कॉर्पोरेट लॉ का है, तो गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बहुत डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए इसके अंदर हम लोग जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन मिलने के तुरंत बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो 12th के बाद में आप रजिस्ट्रेशन, तो उससे पहले जब आप 12वीं क्लास कर रहे हो तभी आप 10th के बाद इमीडिएटली आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आफ्टर डूइंग द 12th यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द सीपीटी एग्जाम। उसमें 4-5 पेपर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता क्वालिफाई करना। अब आप कहेंगे फिर क्या परसेंटेज रहती होगी? In terms of percentage, if you talk, then the percentage, passing percentage in the CPT is concerned, it ranges from 15% to 30% तक, उसके अंदर 25% तक रहता है। तो after doing CPT or after doing graduation, having certain percentage in graduation, you can join the chartered accountancy course. जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है सी इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके बाद में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 3 इयर्स की। वो आर्टिकलशिप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ योर कैरियर। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो हमारी आर्टिकलशिप है 3 इयर्स की, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं अंडर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंडर में आपको वो आर्टिकलशिप करनी होती है। आपको उसके ऑफिस में जाना होता है, आइदर उसके ऑफिस में या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास आपको जाना होता है। उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं सीखने की, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द फर्म टू फर्म, आपके लिए वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का मौका मिलता है, जो आपका एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट होता है जिसको कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, उसका मौका मिलता है। आपको इंटरनल ऑडिट का मौका मिलता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर तो आपको बड़ा वास्ट स्कोप होता है, from the initiation of the transaction till the booking in the books, वो आपको सारा इंटरनल ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिट का सीखने का मौका मिलता है। आपको इनकम टैक्स के बारे में आपको सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो ITR हो, चाहे वो कंपनी का टैक्सेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्सेशन हो, वो उसके अंदर आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स जिसको हम बात करते हैं, आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मौका मिलता है जिसको कि आज की डेट में मेनली जीएसटी मेजर पार्ट है। जीएसटी के अंदर किस तरह से हम रिटर्न्स भरते हैं, किस तरह से हम उसके ऑडिट करते हैं, वो सारा आपको मौका मिलता है। इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो जो कुछ आपका आने वाले टाइम में आफ्टर क्वालिफाइंग, आपको जो कुछ आपने एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है या किसी अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो आपको कंपनी के लिए काम करना है, वो सारा कुछ आपको मौका मिलता है। तो साथ के साथ आपके एग्जाम भी होते रहते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर ज्वाइनिंग मई एंड नवंबर में एग्जाम होते हैं। अभी तो कोविड की वजह से काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं, अदरवाइज 1 मई एंड 1 नवंबर को एवरी 6 मंथ्स एग्जाम रहते हैं इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स रहते हैं वो इंडिविजुअल पेपर में 40% रहते हैं एंड एग्रीगेट ऑफ 1 ग्रुप और 2 ग्रुप उसके अंदर 50% मार्क्स रहते हैं। अगर आप किसी कारण से, ये मैं आपको कुछ चीजें छोटी छोटी सी आपको बताना चाहूंगा जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। किसी कारण से आप किसी ग्रुप में फेल हो जाते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर पेपर या पर्टिकुलर पेपर्स में इफ यू सिक्योर मोर देन 60% और मोर देन 60%,
then this paper is exempted to be given in the next terms. तो आपके 4 पेपर का एक ग्रुप था, उसके अंदर आप अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाए, और एक पेपर के अंदर अगर उसमें आपके 62, 63 आ गए तो आपको वो आगे पेपर नहीं देना है, बाकी के 3 पेपर देने हैं। तो ये तो पेपर का पैटर्न है, मैं उस पेपर के पैटर्न में नहीं जाऊंगा, तो बहुत लंबा लेंथी मामला है। अब ये बात आती है कि आपने आर्टिकल्स भी कर लिया, सीए इंटर भी कर लिया, सीए फाइनल भी कर लिया। पहला सवाल ये आता है कि सर ये बताइए सीए फाइनल करने में टाइम कितने लग जाता है? तो पहले तो मैं एक आपको डराने की बात करता हूँ। अक्सर जब भी हम कभी एड्रेस करते हैं बच्चों को, तो हम कहते हैं भाई आधी जवानी तो हमारी ना सीए करते करते निकल जाती है, और आधी जवानी अगले 3 साल 4 साल जो है अपने आप को एक प्रैक्टिस में जमाने में लग जाती है। ये तो एक लाइटर वेन में कहने वाली बात है। अगर आप फ्यूचर देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेहनत कुछ भी नहीं है जो कुछ आपको हासिल होता है सीए करने के बाद। नॉर्मल कोर्स में आप 3 साल के अंदर सीए कर सकते हो। जो 3 इयर्स की ट्रेनिंग है, अगर आप टाइम से अपना इंटर क्लियर कर लिया, तो लास्ट 6 मंथ्स जो होते हैं 3 साल के अंदर, उसके अंदर आप अपीयर हो सकते हो फाइनल में। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं कि कितने टाइम में सीए हो जाता होगा, तो कुछ बच्चे 3 साल के अंदर कर जाते हैं, कुछ 3.5 साल, कुछ 4 साल के अंदर कर जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 3.5 साल के अंदर, अगर मैं अक्रॉस द बोर्ड अगर मैं एवरेज निकालूं हर 6 महीने का, तो अगर आप देखोगे तो वो 3.5 पौने 4 साल के आसपास के अंदर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो। अब सीए करने के बाद में शिल्पा जी मैं चाहूंगा अगर क्वेश्चंस हो ना, तो मैं साथ साथ लेना चाहूंगा। आप मेरे को बीच में रोक सकते हो, और अगर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं उस क्वेश्चंस को भी हाथ के हाथ ले सकता हूँ, या फिर मैं अभी अगले 10 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में हम लोग जैसा कि ठीक लगे वैसे हम कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर है, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर है। सीए करने के बाद में आपके पास अब 2 चॉइसेस हैं। आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, और आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए, जैसे कि मैं कैरियर ऑप्शंस की बात कर रहा था कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको हो सकते हैं जो आप कैरियर चूज करो, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लेने के लिए आप आगे बढ़ो। यहाँ पे भी सवाल आता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, अब आपको कॉल लेनी है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग योर सीए। आपको कॉल लेनी है कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है। अगर तो आप प्रैक्टिस माइंडेड हो लाइक मी, प्रैक्टिस माइंडेड हो तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, लेकिन वो प्रैक्टिस का डिसीजन लेते समय आपको पूरी सराउंडिंग में देखना पड़ेगा। जब मैंने सीए ज्वाइन किया था, उससे पहले मुझे पता था कि आफ्टर डूइंग माय सीए मैंने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे विजन दिया हुआ था, मेरे फादर ने मुझे समझाया हुआ था। तो मैंने यहाँ आके जब 3 साल अपनी ट्रेनिंग की, तो आई वाज फोकस कि मैं सीए करने के बाद में मैंने प्रैक्टिस करनी है। ये बात डिसाइड करना कि प्रैक्टिस करनी है या जॉब में जाना है, इसके लिए भी 2-3 कारण होंगे आपके। उसके ऊपर आपने रीजनिंग देनी है अपने आप को, और डिसीजन लेना है। जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस माइंडेड हैं तो प्रैक्टिस कर पाए। ये आपको देखना है कि आपकी सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके रिलेटिव्स की वजह से, आपके जो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी वजह से आपको कितना एक्सपोजर है, आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे आपको काम मिलने वाला है। ये तो एक पहला पहलू हो गया। हो सकता है उस 3 साल के अंदर आपको इतना कनेक्टिविटी बन गई हो मार्केट के अंदर, जहां पे आप ऑडिट करने जाते थे, जिनसे आपका वास्ता पड़ता था, तो इतनी कनेक्टिविटी बन गई हो, तो भले ही आपकी पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से आपके कॉन्टैक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे जो कॉन्टैक्ट डेवलप हुए हैं, मेरे जो फ्रेंड्स बने हैं, उनके बेसिस में मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए। आपको लगता है नहीं, पहली चीज तो आपका टेस्ट में नहीं है कि वो प्रैक्टिस वाला माइंडसेट आपका नहीं है,
और आपका माइंडसेट है कि यार मेरे को तो 10 to 5:30 या 10 to 6 की जॉब करनी है, तो वो मेरा माइंडसेट है। मेरे को तो चार्टर्ड अकाउंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट को तनख्वाह वगैरह अच्छी मिल जाती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, दूसरे प्रोफेशनल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलती है। अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो जो हमारा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है शिल्पा जी, जब भी बच्चों से आपका इंटरेक्शन हो रहा हो और कभी कोई बच्चा पूछ ले आपसे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इनिशियल सैलरी होती है वो क्या रहती होगी, तो अक्रॉस द कंट्री हमारे 2 बार हमारा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। हमारे नवंबर बैच के जो जनवरी में रिजल्ट आते हैं तो फरवरी में कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, मई के रिजल्ट जुलाई में आते हैं तो हमारा अगस्त सितंबर में कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। तो अराउंड 6,000 to 7,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी 6 मंथ्स बनते हैं, यानी कि 10,000 से 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल बनते हैं। कभी कभी वो 15,000 से फिगर ज्यादा भी चली जाती है। तो अगर हम मान लें कि 6,000 बच्चे कैंपस में बैठ रहे हैं, अराउंड 50 to 100 कंपनीज आ रही हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, नहीं पूरे अक्रॉस द कंट्री 100 प्लस हमेशा कंपनीज होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। किसी में 5 वैकेंसीज से लेके 100 तक की वैकेंसीज रहती हैं। तो अगर मैं सैलरी ब्रैकेट की बात करूं, मैं यहाँ पे अभी आपको इसलिए अपने आप को रोक लिया है सैलरी के बारे में बताने के लिए, ये सवाल आपके मन में आएगा। तो अगर मैं एवरेज सैलरी अपनी हर कैंपस की बात करूं तो एवरेज सैलरी कम्स टू अराउंड 7 लाख रुपीज फॉर ए फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने अभी 1 महीने पहले सीए का कोर्स किया है, तो उसका जो एवरेज आता है, अगर 6,000 हमारा 30 to 40% तक का हमारा सक्सेस रेट रहता है। 6,000 बच्चे अगर अपेयर हुए तो 2,000 के आसपास बच्चे हमारे प्लेस हो जाते हैं हर 6 महीने में। ये मैं बात कर रहा हूँ कैंपस प्लेसमेंट की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट में आते ही नहीं, उससे पहले उनकी जॉब लग चुकी होती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिजल्ट और कैंपस के बीच में करीबन 1-1.5 महीने का गैप रहता है सारा मैनेजमेंट करने के लिए। तो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज एवरेज सैलरी फॉर ए फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए फ्रेशर प्रोफेशनल आपको किसी भी और किसी उसके अंदर नहीं मिलेगी। आप अपने आप को कंपेयर करोगे एमबीए से, आप करो, लेकिन अगर आपने एमबीए से कंपैरिजन करना है तो टॉप 20 ऑफ द इंस्टीट्यूट जो हमारे कंट्री के है ना, उनसे करो। हजारों की तादाद में है ना, उनसे करने की जरूरत नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्यों? क्योंकि वो जो हजारों की तादाद में इंस्टीट्यूट है ना, उनको किसी को 15,000 रुपए महीना, किसी को 20,000 रुपए महीना, और कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो 30,000 रुपए महीना, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। और बजारटी का तो अगर आप देखेंगे तो साल का पैकेज स्टार्टिंग जो होता है 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक का ही होता होगा, इससे ऊपर नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट द टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स के जो एमबीएस है, उसकी तुलना अगर आप सीए से करोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ सीए इज बेटर। क्यों? यहाँ पे बच्चा जो है ना बड़ी एवरेज बैकग्राउंड से आ रहा है, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो बड़े मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है। उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर आप देखोगे ना, और पूरे 3 साल का या 4 साल का खर्चा देखेगा, तो वो मुश्किल से 4 या 5 लाख रुपए का खर्चा आता होगा। 4-5 लाख रुपए से ज्यादा बोल दिया, क्योंकि उसमें कोचिंग भी शामिल है। 2.5-3 लाख रुपए मुश्किल से खर्चा आता होगा। अगर हम टॉप 20 इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसकी तो जो एडमिशन फीस है, उसका जो टोटल खर्चा है, वही 20-25-30 लाख रुपए का हो जाता है। दूसरा, वहां का जो इनटेक है वो क्रीम लेते हैं, हजारों स्टूडेंट्स में से 200 या 100 बच्चों का बैच लेते हैं। हमारे यहाँ तो सीपीटी किया 30%, 25% बच्चा जो है क्वालिफाई किया और इसके अंदर आ गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सैलरी पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज थ्रू कैंपस, इट इज समथिंग अराउंड 7 लाख। हमने मापदंड अपने लगाए हुए हैं कि कोई भी कंपनी हमारी 4 लाख रुपए से कम का ऑफर नहीं दे सकती। अगर वो 4 लाख रुपए से कम का ऑफर दे रहे हैं तो हम उनको अपने कैंपस में अलाउ नहीं करते। तो कुछ कंपनी 4 लाख दे रही हैं, कुछ 10 लाख दे रही हैं। 25-25 लाख रुपए तक के पैकेज हमारे कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मिलते हैं, तब वो जाके हमारा 7 लाख का एवरेज आता है। मैं अभी थोड़ा सा जॉब की तरफ, कैंपस की तरफ चला गया था। आपने, अब मैं अभी जो बात कर रहा था प्रैक्टिस और जॉब की, जॉब के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। क्या मैं अभी एक बार प्रैक्टिस में, मैं बाद में आऊंगा, एक बार फिर दोबारा से आऊंगा। जॉब के अंदर भी आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस है। आप अगर कहते हो कि सर मैंने तो गवर्नमेंट नौकरी करनी है, तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हमारे जो बैंक्स हैं,
10 to 5 गर्ल्स के लिए नॉर्मली जो जॉब में जाना चाहती है उनको लगता है कि भाई मेरे को अपनी आने वाले टाइम में फैमिली को भी टाइम देना है, तो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड बैंक्स 10 to 5 वाली नौकरी उनके लिए बहुत ही सुटेबल रहती है। लोग कहते हैं नहीं सर मेरे को बीपीओ केपीओ में जाना है, तो बीपीओ केपीओ में तो इतनी भरमार है, इतनी डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट की कि हर बार हर 6 महीने में शायद 1000 बच्चा जो है वो बीपीओ केपीओ टाइप की इस तरह की कंपनीज में जाता है। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैंने केवल टैक्सेशन में जाना है, तो यू हैव द ऑप्शन, ओनली ऐसी कंपनी ज्वाइन करें, ओनली एंड ओनली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहां पर आपको टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा यू से कि नहीं आई एम गुड इन फाइनेंस, मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ए वेरी गुड नंबर ऑफ ओपनिंग्स आर देयर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिडिल लेवल और अपर मिडिल और द अपर क्लास कंपनीज, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का माइंडसेट रखते हैं, या बैंक, हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, वहां पे पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है। ये डिपेंड करता है, बड़े सारे सेगमेंट हैं जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट। इसके अब हम बात करते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की। हाँ, मैं एक नंबर्स आपको जरूर बताना चाहूंगा। हमारे इंडिया में इस समय लगभग 3,80,000 के आसपास और 3,90,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इस 3,80,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से लगभग 35 to 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हैं जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है वो लगभग उनकी गिनती 35 से 40 हजार है। हो सकता है आप थोड़ी सी बढ़ गई हो, मैं लास्ट ईयर की फिगर बोल रहा हूँ, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस में भी है, राइट। जहां तक हमारे टोटल नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर्स दे आर इन एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री एंड हाफ ऑफ द टोटल नंबर्स दे आर इन प्रैक्टिस। और अब प्रैक्टिस के अंदर हम बात करें तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय आपके लिए मैं एक चीज और आपको एक गाइडिंग फैक्टर में आपको देना चाहूंगा। होता ये है कि बहुत बार आपको प्रैक्टिस तो करनी है, बट इमीडिएटली आफ्टर क्वालिफाइंग योर कंडीशंस आर नॉट सो सपोर्टिंग दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिस इमीडिएटली, बिकॉज बहुत सारी कंपल्सन्स हो सकती हैं। कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है, कुछ लोग की अभी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इमीडिएटली इसमें जंप इन कर पाए। तो मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं जिनको पता था कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो लेकिन मेरी, बिकॉज एज आई सेड कि आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस आंवला डिस्ट्रिक्ट बरेली, व्हेन आई केम टू दिल्ली देयर वाज नो नोन पर्सन टू, यहाँ पे पूरी दिल्ली एनसीआर क्या 100 किलोमीटर के रेडियस में भी मेरा कोई जानने वाला नहीं था उस समय। मैं बार बार अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो आज की डेट में एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, नॉट ओनली मी, बहुत सारे आपको एस्टेब्लिश्ड लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, उनकी अगर आप बैकग्राउंड में झांक के देखेंगे तो आपको उनकी ग्राउंड रियलिटीज पता लगेंगी। ओ आप क्या बात कर रहे हो, आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या 100 किलोमीटर के रेडियस में यू वाज नॉट हैविंग इवन अ सिंगल कांटेक्ट, एक या दो लोग थे भी तो वो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड के थे कि जिनका कोई आपको हेल्पिंग हैंड नहीं था, जहां तक आपका प्रैक्टिस का सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्टिकल्स के दौरान, सीए लाइब्रेरी के दौरान जो कनेक्टिविटी बनी, तो उसकी वजह से एक हौसला था कि मैं प्रैक्टिस जमा जाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए जिनकी इमीडिएटली प्रैक्टिस स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहा हूं, उनके लिए एक रास्ता ये रहता है कि वो शुरू के 1 या 2 साल जो है वो अपनी कहीं जॉब करें। वो जॉब किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में भी हो सकती है और वो जॉब जो है किसी इंडस्ट्री में भी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें तो वो इंडस्ट्री इस तरह की होनी चाहिए जहां से आप अपनी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकें। वो कंपनी आपकी अगर मिडिल लेवल कंपनी है, स्लाइटली अपर मिडिल लेवल कंपनी है, वो ज्यादा अच्छा है। उसका कारण क्या है
कि आप वहां पे सिंगल एक या दो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे, तो आप अकाउंट्स भी डील कर रहे हैं, फाइनेंस भी डील कर रहे हैं, उनका MIS भी डील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल कॉमर्शियल मैनेजर की तरह आप काम कर रहे हैं। तो once you are doing the job as a commercial manager, including the responsibility of accounts, finance, taxation, all the things, so you are getting the opportunity to come into connection with the outside world. वहां के जो कस्टमर्स हैं, वहां के जो वेंडर्स हैं, वहां के जो सप्लायर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टर्स हैं, मतलब वैरायटी ऑफ पीपल जो उस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपके डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं। जब आप उनके डायरेक्ट कनेक्शंस में आ जाते हो, आप उनके परचेज का बिल पेमेंट कर रहे हो, आप उनकी मतलब वगैरह वगैरह, में उस डिटेल में नहीं जाता, तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे मुझे 2 साल एक मिडिल लेवल कंपनी में फरीदाबाद में मैंने जॉब की थी, उससे पहले फरीदाबाद से पहले मैं दिल्ली में था। तो वहां पे मुझे इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इन सब की नेटवर्किंग मेरी बन गई। और जब मैंने आफ्टर 2 इयर्स मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो पहली चीज तो मेरे जो एम्प्लॉयर थे, उनका डिपेंडेंसी मेरे ऊपर इतना हो गया था कि दे ऑफर्ड मी कि विजय जी आप जॉब भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने आप को हमारे यहाँ रिटर्नरशिप पे बना के रखिए। 50% टाइम लगाता था, 50% अपने को वहां का जो लास्ट सैलरी थी उसके हिसाब से मिलता था। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप किसी भी वजह से उस समय नहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करें जहां से आपको प्रैक्टिस की पॉसिबिलिटीज अच्छी हो जाए, जैसे कि हमारे जैसे काफी लोग ऐसे रहे होंगे। तो ऐसा करने के बाद में आपकी प्रैक्टिस के अंदर एक फायदा ये हो जाता है। और हो सके तो आपके जो हम उम्र लोग हैं, जो आपके साथ में के लोग हैं, साल 2 साल ऊपर नीचे, प्रैक्टिस अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जहां तक आप ये, मैं इसको ही समअप करता हूं, जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है, प्रैक्टिस के अंदर, हाँ, मैं आपको एक बात और लास्ट में बताना चाहूंगा। आप अगर कहते हैं मैंने स्पेशलाइजेशन करना है, मेरे को डायरेक्ट टैक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, मेरे को इंटरनेशनल टैक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, आपको GST के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, फाइनेंस के अंदर, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मार्केट में किस तरह से एस्टेब्लिश करने वाले हो, किस तरह से आप अपने आप को सेल आउट करने वाले हो, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करने वाले हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। हाँ, मैं लास्ट में आपके जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, कंपनी सेक्रेटरी, ICWS, CA से लेके MBA से लेके लगभग सभी के अंदर ये ऑप्शन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। इसकी डिटेल, हाँ, अगर वाइस वर्सा की बात करें, नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आइदर इन साइंस लाइन और दी अदर लाइंस वो अवेलेबल नहीं रहती, वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन बाकी नॉन कॉमर्स के लिए कॉमर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो ऑप्शंस है उसमें हमारी अवेलेबिलिटी रहती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है। इसके लिए मैं चाहूंगा कोई भी चीज आप एक्सप्लोर करना चाहो तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एडमिशन का है उसको देखिए, यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेरी। शिल्पा जी, जहां तक मेरा एड्रेस करने का सवाल था इस ऑप्शंस के ऊपर, वो मेरी साइड से ओवर है। मैं चाहूंगा अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, और मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं के गुप्ता जी एक चीज बोलना चाहूंगा। जितना कि आप मेरे को जानते हो, नेचर मेरी पहचानते हो, मैं मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था पब्लिक लाइफ में CA इंस्टीट्यूट के साथ में, वो 1995 में हुआ था, व्हेन आई गॉट इलेक्टेड फॉर द फरीदाबाद ब्रांच ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस शुरू की थी CA के बच्चों के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर स्टार्ट किया था, सप्लाई ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल्स वगैरह स्टार्ट किया था, और मैं मेंटरिंग भी करता था, काफी टाइम से मैं मेंटरिंग करता रहा हूँ। आई वुड बी हैप्पी के गुप्ता जी एंड शिल्पा जी, अगर कोई भी बच्चा ये फील करे कि मुझे मेंटरिंग की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि 2, 4, 5 बच्चों के लिए आपके कॉलेज से अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई वुड बी हैप्पी टू गिव द मेंटरिंग। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज ऑल। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है? Pardon me? If anybody wants to ask any question, they may raise their hand.
मितेंद्र, आप देख के कोई बच्चा अगर हैंड रेज करता है तो उससे आप unmute करते हैं। If anybody wants to ask any question, कोई बच्चा पूछना चाहे? Himani wants to ask. Good morning, sir. Good morning. Sir, my question is that please clear me the difference between B2B profile marketing and B2C profile marketing. Himani, as I said, कि I am a person from the commerce background, chartered accountant, और आपका जो क्वेश्चन है वो मार्केटिंग से कनेक्टेड है, तो मार्केटिंग का शायद कल मिस्टर अमित कुमार कल बोलने वाले हैं. Yes, sir. कल की तो जो you series can है. you can Yes, put sir. up these questions to Mr. Amit Kumar. That would be good. Okay, sir. Yes, yes, sir. Thank you. Himani, कल का session will be on marketing, career opportunities in marketing. तो बच्चा, there you can raise this question. उत्कर्ष ने If you have raise any किया है. question related, उत्कर्ष गर्ग ने रेज किया हुआ है. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष. सर मैंने सर एक कोर्स में एडमिशन ले रखा था CMA कैट में. सर उसके बारे में कुछ है आपकी राय? CMA कैट. यस सर. शिल्पा जी, एकदम तो इंस्टेंटली मुझे CMA कैट के बारे में आइडिया नहीं है. हाँ जी. मैं आपको इनका आप उत्कर्ष जी का नंबर ले लीजिए. मैं इनको CMA कैट के बारे में, क्या क्वेश्चन, क्या आपका क्वेश्चन बताएं. सर जैसे अभी आपने काफी सारे कोर्स बताए, काफी कुछ सीखने के लिए मिला. आज काफी सारी चीजें क्लियरफाई हुआ कि अब मैं कोर्स भी कर रहा हूँ, इसमें काफी सारी चीजें हैं. तो ये साल भर का कोर्स है, क्रैश कोर्स, जैसे कि इसमें CMA में एडमिशन लेते हैं ना हम डायरेक्ट. आप CMA की बात कर रहे हो, जो CMA UK की बात कर रहे हो? हाँ सर, इंडिया में भी है इसका लीगल. नहीं, CMA UK का जो कोर्स है आप उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, CMA कैट. हाँ, ठीक है. आप अपना क्वेरी मुझे दे दो. मेरी एल्डर डॉटर ने CMA UK किया हुआ है. अच्छा. मैं उनसे बात करके, शिल्पा जी को आप नंबर दे दीजिए अपना, चैट बॉक्स में डाल दीजिए. आई विल रिवर्ट बैक. और आप क्वेश्चन भेज देंगे पूरा, तो मुझे आपको और अच्छा रहेगा कि उसके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हो. ओके सर. ओके. Anybody else? Around 121 people are there and questions आने चाहिए. Yes. Anybody else? If anybody else wants to ask any question. देखिए बच्चों, मैं आपको ना एक बात ये बोलना चाहूंगा कि हमारे माइंड में ना ये 121 में अगर हम ऑर्गेनाइजिंग टीम को निकाल दें तो लगभग 110 बच्चे हैं इस समय. 110 बच्चे करीबन होंगे. जी सर. मन में 110 लोगों के क्वेश्चन होंगे. राइट. हेजिटेशन होती है. हेजिटेशन ये होती है कि मेरा क्वेश्चन पता नहीं ठीक है कि नहीं है. ये हेजिटेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हेजिटेशन ना आपके क्वेश्चंस को ही नहीं दबाती. उसके जो आंसर्स आपको मिलने हैं, क्वेश्चंस आपने दबा दिया, उसके जो आपको आंसर मिलना है, आपको जो क्लेरिफिकेशन मिलना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है कैरियर पाथ के लिए. तो अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन आए तो उसका आंसर. शिल्पा जी, ओवर टू यू. हाँ जी. विजय जी, मुझे Anybody? लगता है ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ना, हाँ जी. ये हाँ जी, इसका गुप्ता जी. दोष है. अध्यापकों ने बच्चों की जो पूछने की इंस्टिंक्ट होती थी वो मार दी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. विद द एप्रिहेंशन इन माइंड कि कहीं बच्चा क्वेश्चन पूछ ले और मुझे ना आता हो तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. हाँ 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 हाँ. सर आप आपकी म्यूट हो आवाज रही सर. आप 1-2 म्यूट हो साल में रही. नहीं. क्या गुप्ता जी दोबारा से रिपीट करें? आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जहां पर ये भय भी नहीं है और आप कितना ग्रेसफुली चीजों को एक्सेप्ट करते हो, आई सैल्यूट यू. अरे सर, सो नाइस ऑफ यू. जिसके स्पेशलाइज्ड फील्ड का प्रश्न है, यदि उससे किया जाए तो समाधान बेहतर होगा. बेहतर होगा. यस. तो आप इतना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो उस चीज को, तो आई विल कॉल अपॉन माय स्टूडेंट्स कि भाई आपको प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि शंका यदि आपकी दबी की दबी रह गई तो वो आपको ज्यादा परेशान करती है. और जो व्यक्ति ने भी आगे चढ़ के एक जो बात कही कि उसका जो आंसर मिलने वाला है वो भी नहीं निकल पाता बाहर. हो सकता है वो आपको फायदा ना करे, आपके पड़ोसी को फायदा कर दे, आपके दूसरे साथियों को फायदा कर दे. तो कुछ जानने की ललक, कुछ जानने की जो इच्छा है,
वो बच्चों में दोबारा से हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बच्चों में ही नहीं है, ये बीमारी मास्टर भी नहीं पूछते। आप टीचर्स का वेबिनार लो, मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ। Yesterday we started our faculty development program in which more than 300 teachers from colleges and universities they are participating, and we have very good speakers from various academic institutes of repute. पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन नहीं पूछते। जबकि देयर कैन बी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और डर क्या रहता है कि यार बाकी लोग सोचेंगे इसको ये भी नहीं आता, जबकि वो आता बाकियों को भी नहीं है। तो दिस इज द रियलिटी। और गुप्ता जी ना, आपने जो कहा ना कि वो क्वेश्चन नहीं पूछता, और वही क्वेश्चन कोई दूसरा पूछ लेता है ना, जी फिर पता क्या लगता है, काश मैंने क्वेश्चन पूछा होता। एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन उसके दिमाग में भी वही चल रहा होता है। यस सर, यस सर। तो इतनी बात की है तो एक आध कोई हाथ खड़ा हुआ नहीं हुआ शिल्पा? हाँ, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश का है जी। हाँ, सत्य प्रकाश पूछो। प्रकाश बोलो बेटा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अपने पास लाओ माइक, मुंह के पास लाओ माइक। ये सच बात है। आप सतप्रकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ये सर से ये क्वेश्चन था कि सर विच वन इज बेटर, कि अगर हम सीए करना चाहें या फिर सीए प्रोफेशनल लाइन में, या फिर गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। एक बार आप अपना वीडियो ऑन करें, अगर कर सकते हैं। कंघी उंगली कर ली होगी आपने ढंग से तो। सर चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं या हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें, इन दोनों का कंपैरिजन आप ऐसे एकदम नहीं कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात अगर आप करते हो तो वो तो एक अलग ही, मैंने आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर मिलती है, पीएसयूज के अंदर मिलती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योर जो डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जॉब है, आपका टेस्ट है, आपकी फैमिली में कई सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कई बार टेस्ट वहां से डेवलप होता है कि अपने को तो डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट जॉब, तो वो फिर वो अलग चॉइस हो गई। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आपकी जो फैमिली है, आपका जो स्किल सेट है, वो सब कुछ अलाउ करता है, फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ करती है, तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद एनी गवर्नमेंट जॉब। इट इज वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट जॉब का मैं आपको तुलनात्मक चीज दे देता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो, से जिस भी स्केल में आप ज्वाइन करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, फर्ज कर लीजिए आपको 25,000, 30,000, 35,000 रुपए महीना स्टार्ट हो जाता है। आपकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप 10 इयर्स डाउन द लाइन, 15 इयर्स डाउन द लाइन देखेंगे तो वहां तो पैरामीटर्स फिक्स्ड है, जो उनके अपना जो ब्रैकेट्स हैं वो फिक्स्ड है, उसी हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होना है। आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट नहीं होना है। आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड एक आध प्रमोशन तो लग सकता है उस 15 साल में, 20 साल के कैरियर में, लेकिन अदरवाइज आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है सैलरी के अंदर वो फिक्स्ड है, वो उसी हिसाब से चलेगी। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंपैरिजन अगर मैं जॉब के अंदर भी करूं, अगर मान लेते हैं कि आप तुलना कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में जॉब में जा रहा हूं, कोई तुलना नहीं है। मेरे साथ के लोग, चलिए मेरे को 33 इयर्स हो गए, मैं अपनी तुलना नहीं करता, जो लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 इयर्स टू 15 इयर्स के बीच में 1 करोड़ रुपए के पैकेज में पहुंचे हुए हैं, सालाना 1 करोड़ रुपए के पैकेज। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, अभी पहले मैं ये पूरा कर दूं, तो 1 करोड़ रुपए का पैकेज गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं मिलने वाला आपको।
10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। एक स्टेज पे जब वो 1 करोड़ का नंबर आता है तो उस समय तक तो आपकी रिटायरमेंट की स्टेज होती है, वो भी क्रीम ऑफ द क्रीम वहां तक पहुंच पाती है। मैंने 1 करोड़ की बात कही है तो ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है। अगर आप नॉर्मल कोर्स में भी एवरेज भी बात कर लेंगे तो 10 इयर्स डाउन द लाइन 50 लाख रुपए का तो पैकेज आम बात है, कुछ भी नहीं है 50 लाख रुपए। 7 इयर्स 6 इयर्स के बाद में 50 लाख रुपए का पैकेज हो जाता है। अब आप कहोगे साहब मेरे तो जानने वाले ऐसे भी सीए हैं जिनको 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कोई तुलना नहीं है इस चीज की कि गवर्नमेंट जॉब की और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। आई वुड से यू मस्ट गो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आपकी सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ कर रही हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आपका पहली बात है आपका जो स्किल सेट है ना, जो आपका माइंड सेट है वो इस तरह का है जो कि आप सीए के अंदर जाना चाहते हैं। सनील शर्मा ने हैंड रेज किया हुआ। हाँ जी सर, सनील वांट्स टू आस्क। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। या सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा भी आपने बताया सीएस एंड सीए का, सर सीए या सीएस में से हम कुछ भी, मान लीजिए हमने सीए चूज किया, सर हम उसे मार्केटिंग सेगमेंट में लेकर जा सकते हैं? देखिए मार्केटिंग सेगमेंट, आप क्वेश्चन पहले क्लियर करो, मार्केटिंग सेगमेंट यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो? सर लाइक जैसे मुझे आके बिजनेस लाइन में जाना है, तो सर अगर मैं सीए या सीएस में कोई फील्ड चूज करता हूँ तो सर उसके साथ साथ मैं बिजनेस लाइन में जा सकता हूँ सर? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। जो कि रियल क्वेश्चन है वो आपने सेकंड सेंटेंस में, सेकंड फेज में पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है शिल्पा जी। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई वुड से कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में क्या मैं बिजनेस में जा सकता हूँ? जी देखिए इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। आप बिजनेस करना चाहते हो, अभी आपको डे आफ्टर टुमारो मिस्टर विवेक अग्रवाल इज गोइंग टू स्पीक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कोप है वो उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। आपका माइंडसेट है कि मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है और फिर आप कहते हो कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। अगर ऐसा माइंडसेट है ना तो इसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते करते आपको जो नॉलेज मिलेगी, आपको जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिलेगा, द काइंड ऑफ क्वालिटीज यू आर हैविंग थ्रू दिस कोर्स, वो आपकी जो बिजनेस में एज ए बिजनेसमैन जो आपको पहले दिन से जो आपको फायदा देगा वो आप सोच भी नहीं सकते कितना फायदा देगा। मेरे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड ऐसे हैं जो कि बिजनेस में गए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं। व्हेन आई वाज डूइंग सीए तो एक बच्चा जो था गौरव सिंगल करके फ्रॉम मुजफ्फरनगर, दे आर वेरी रिच पीपल। उनका पेपर का और स्टील का बिजनेस है, करेक्ट। उनको कोई जरूरत नहीं थी, उनको करना ही नहीं था सीए, तो केवल वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के लिए, एजुकेशन के लिए आए थे। तो he has done the CA और immediately after doing the articles qualification he has joined his father's business। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो और सीए कर लेते हो तो आपको लाइफ के अंदर ना, पहली चीज तो खुद आपका माइंडसेट वैसा रहेगा। दूसरा जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे ना, उनसे जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे होगे, MIS डेवलप कर रहे होगे, all the accounts, finance, taxation, GST, everything will be on the tips। तो आप masters of not only your business, masters of all the fields will be there। Very good question। Thank you, sir. Anybody else? So shall we wind up the program? Yes, yes, from my side it's okay। बाकी के गुप्ता जी से पूछे। शिल्पा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करना पड़ता है प्रश्न पूछने के लिए। तुम लोग बस ऐसे ही जिसने पूछना है पूछो, नहीं पूछना है मत पूछो, ऐसे थोड़ी काम चलता है। देखो अब बच्चे आगे आगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। लास्ट क्वेश्चन तो जैसा विजय जी भी कह रहे थे कि मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो समराइज आप करोगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से विजय जी ने चीजें बताई है ना, और एक लाइन तो मैंने भी नोट कर ली क्योंकि मुझे भी बोलने का मौका मिलता रहता है, तो मैं भी जो अच्छी चीज है वो नोट कर लेता हूँ। विजय जी मैंने पहली बार ही सुनी ये लाइन आपकी, और ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि बी करियर फॉर योर कैरियर एंड डोंट बी बैरियर इन योर करियर। इतनी बढ़िया लाइन है, मतलब सबसे अपील करती है।
मतलब ये सेल्फ रिलायंस का भी अनुभव देती है कि आप तो सेल्फ रिलायंट हैं। जब तक बच्चे के अंदर स्वावलंबन की भावना नहीं होगी और जब तक वो ये नहीं कहेगा कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, यस सर, तब तक कैसे करेगा वो? तो इस तरह के उस पे, और शिल्पा जी अब विजय जी ने ऑफर कर ही दिया है तो इनको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सर, आई विल आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। यस सर, इनकी ग्रेटनेस देखो आप, ही हिमसेल्फ हैज ऑफर्ड। यस 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 सर, यू आर ऑब्लाइज्ड। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 5 बच्चे इनके संपर्क में आ गए ना, तो उनका भाग्य बदल सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि ये मोमेंट्स वो होते हैं जो टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं बच्चों की लाइफ में। तो डेफिनेटली हम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी अब आप करो, इनका धन्यवाद करो, समराइज करो। गुप्ता जी, इसके लिए ना, ये जो मेंटरशिप के लिए ना, शिल्पा जी, आप जो भी बच्चे आपको अप्रोच करें, रेदर गुप्ता जी की बात को मैं एक्सटेंड करता हूँ कि बच्चे खुद क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, इस काम के लिए भी ना जरूरी नहीं है बच्चे खुद आगे आ पाए कि मेंटरशिप के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप उनको प्रमोट करो, एनकरेज करो, 4-5 बच्चे आइडेंटिफाई करो, आई विल कम टू योर कॉलेज ओनली। वहां पे बैठ के बच्चों के साथ में उनको एक थोड़ा सा मोटिवेट करना है पहले, और उनको देख के फिर अगली बार में आपके साथ में जो भी फैकल्टी आई होगी 5 लोग और उसके साथ जुड़ जाएंगे। यस शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी, थैंक यू शिल्पा जी, हाँ जी, विजय जी हाँ की जी इस सर। बात से मुझे ध्यान आया, अब आपका जो ये विभाग है ना, इसका हाँ जी। नाम करियर काउंसलिंग सेल नहीं होगा आज के बाद, नोट फिर कर क्या लो। होगा? ये होगा जी सर। सेंटर फॉर करियर काउंसलिंग। डेफिनेटली Yes, सर। yes, yes. तो वी विल डेवलप ए सेंटर जिसमें विजय जी जैसे जो मर्मज्ञ लोग हैं, जो अपने उसके तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आकर के हमारे बच्चों की मदद करेंगे। वी आर लकी कि भी इस तरह के लोग अपनी सेवाएं हमें ऑफर कर रहे हैं कि आए और बच्चों की मेंटरिंग करें। दैट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर, यस, राइट? thank you very much sir for this enlightening session. The series would not have been started so well if it would not have been your deliberation. Your golden words, be a carrier for a career and don't be a barrier for your career. Even I wrote this line, and the theme मुश्किल तो है पर मुमकिन है. So I sincerely hope this will vibrate among my students, sir, for a longer period of time. And next time we'll try ki the session will be physical and the students will be more interactive. My heartfelt thanks to our principal sir, who is the guiding force behind all these events. He always motivates us to do better and better and achieve excellence in all our efforts. My thanks to our convener, Dr. Manoj Shukla, under whose guidance the whole program took shape and was executed well. My thanks to all faculty members for their support, and special thanks to Mitender and Deepti for their technical support. Last but not the least, I thank all our students who made this program a huge success. And in the end, I would like to mention, Mitender, aap feedback form float kar dijiye chat box mein. And this is a 3-day series. So tomorrow we will get to hear from Mr. Amit Agarwal, and he will be deliberating his session on career opportunities in marketing. So again tomorrow, I wish you all join this program and you get an insight what all opportunities are available in the field of marketing for you all. And from the bottom of my heart, again and again, I thanks CA Vijay Kumar Gupta ji for such an enlightening session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you Shilpa ji, thank you Gupta Thank you ji, so much, thank sir. you Manoj ji, and Thank you. thanks everybody present in this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.